Hello and welcome everyone to the lecture on power electronics. In today's lecture we are going to discuss about thyristor ratings and protection of thyristor mainly, and then if the time permits we will look at series and parallel operation of thyristors. Okay, so first of all let's start by looking at what we have studied in previous class. So in last class we discussed dynamic characteristics of thyristor, that is the switching characteristic of thyristor, and then we discussed the two transistor model of a thyristor. Okay, so let's take a look. So the two transistor model of a thyristor, so as you can see on the screen here, we have just assumed that the thyristor is made up of two transistors, and the construction wise we have assumed that the middle N and P layers have been divided in two parts. So you can see here, like this is the anode junction, here this is the gate terminal and this is the cathode terminal, and so this is making one, this is like T1, the transistor number 1, this is transistor number T2, and they are connected as if the base current of transistor T1 is the collector current of transistor T2. Okay, and the collector current of transistor T1 is the base current of transistor T2. Okay, so as you can see in this circuit here, we have drawn the circuit diagram here. This is the anode, this is anode, this is gate, and this is cathode. Okay, so as you can see the transistor T1 is connected in such a way that its base current or the base terminal is going to the collector terminal of transistor T2, and the collector terminal of the transistor T1 is going into the base terminal of transistor T2. Okay, and this is the gate terminal here. So the gate is the sort of the common node here between transistor T1 and T2, where the collector of transistor T1 and base of transistor T2 are connected. Okay, so when you look at the anode, anode is basically the emitter of transistor T1, and cathode is also the emitter of transistor T2. Okay, and the equation that we are going to be using for the analysis purpose will be IC equal to alpha into IE plus ICBO. This is a very well known equation which we have already studied in analog electronics. Here ICBO is the common base leakage current, and alpha, as you will know, alpha is common base current gain, and normally we write alpha as IC divided by IE, and so the maximum value of alpha will be equal to 1. Alpha will be somewhere between 0 to 1 normally. Okay, so we have written the equation like for transistor T1, IC1 will be equal to alpha 1 IA, because IE, emitter current of the transistor T1, will be equal to IA because it is equal to the anode current. So IC1 will be equal to alpha 1 into IA plus ICBO1. Similarly IC2, that is the collector current of transistor T2, will be equal to alpha 2 multiplied by
IK, because IK is the equal of IE for transistor T2 plus ICBO2, and IK is equal to IA plus IG. Okay, so we are just, if you see this bigger loop, okay, here if you apply a super node type of structure, you will see here, okay, in this loop you just need to apply that KCL. So IA plus IG will be equal to IK, that is what here written is, IK equal to IA plus IG. And also another equation is that IA will be equal to IC1 plus IC2. Okay. So here you can see that IA is basically divided into two parts as IC1 and IC2. So these two equations we are going to be using here. So first of all, we have replaced IK in equation number 2 here. So IC2 is equal to alpha 2 multiplied by IA plus IG plus ICBO2, and IA, as I have shown that IA is equal to IC1 plus IC2. So in order to find IA, we will add equation number 1 and equation number 3. So we will get IA equal to alpha 1 times IA plus ICBO1 plus alpha 2 multiplied by IG plus IA plus ICBO2. So you will solve and you will get this equation. Okay. Now with the help of this equation, you may be asked to explain the operation of thyristor. Okay. So the question will be like, explain the operation of thyristor using two transistor model. Okay. So what normally we explain the operation of thyristor as there are three junction J1, J2 and J3. So junction J1 and J2 will be forward biased if the transistor is the thyristor is forward biased, and junction J2 will be reverse biased. Okay, so in forward blocking mode, the junction J2 will be blocking the condition, and in the reverse blocking mode, junction J1 and J3 will be blocking the conduction. But if we apply a gate pulse, then what happens is that the gate terminal, through the gate terminal we are injecting the charge carrier, so that the junction J2 is no longer capable of blocking the charge flow, so the thyristor start conducting. Okay, so this was the gate triggering that we have studied, and there are other methods also, like forward voltage turn on method. So in forward voltage, what we do is that we keep on increasing the forward voltage, so ultimately the junction J2 is going to break down, is going to have avalanche breakdown, so that the thyristor will start conducting. So those similar kind of turn on process you will have to explain using the two transistor model. Okay, so for example, here if we are trying to explain the gate turn on method, so in gate turn on method, what will happen, that first of all there will be some small pulse IG will enter into the circuit, and imagine that initially the anode current is 0, so IC1 is 0, only small leakage current is present, so IB2 will be equal to IG, and so as there is IB2, so if there is base current, then it will create some collector current, because of IC2 will be equal to beta times IB2, so there will be collector current, and as this collector terminal of transistor T2 is connected with the base terminal of transistor T1, so it will result in a base current also. Okay, so there will be some base current in transistor T1, so as a result of that base current, there will be some collector current IC1 equal to beta times IB1 in the transistor T1. So now what will happen, that IC1 will increase, and as a result of that IB2 will again increase. So if IB2 increases, IC2 will increase, and again IB1 increase,
and so IC1 will again increase. So you can see there is a positive feedback loop here, and it will keep on increasing. So the current will keep on increasing, and the current will only be limited by the external impedance connected in the circuit. So this is what we explained in the, in thyristor also, that once the gate pulse is there and junction J2 has a breakdown, so the thyristor start conducting, and the current is only limited by the external impedance. Okay, so for example, what will happen, that suppose there is some voltage here, and this is some R load resistance R is connected, so the I is always limited by this R. Okay, so even if the thyristor is having 0 voltage drop across it, still the maximum current will be V by R, because the current anode current will always be limited by the external impedance connected in the circuit. Okay, so if you are able to understand this positive feedback loop, then you will be easily able to understand the operation of thyristor using 2 transistor model. Okay, now similarly, this was the gate triggering, gate turn on method. If you are trying to explain the forward voltage turn on method using 2 transistor method, then how you can explain this? Okay, so forward voltage turn on, what we are doing is we are applying a large voltage across the anode and cathode. So suppose here we will be connecting a voltage source, and we will keep on increasing that voltage source until the thyristor start conducting, and Ig is equal to 0 in this case. So this Ig current will be 0. So what will happen, that as the voltage increases, the voltage across emitter and collector region of the transistor T1 is also increasing. Okay, so as a result of this voltage, the leakage current will increase. Okay, so the leakage current will result in some IC1. Okay, now as the IC1 increases, IC1 will be equal to IB2, and again you can see the same positive loop, positive feedback loop will start. Okay, but this time this loop start because of the high leakage current due to forward voltage. Okay, so high leakage current in transistor T1 will result in the base current of transistor T2, and the base current will again be amplified in the collector current, and the same cycle will start repeating, and the thyristor will, this whole thyristor will start conducting basically. Okay, so this is the operation of thyristor using 2 transistor model. So now let's come to the next topic, which is thyristor ratings. Okay. Thyristor so this is somewhat a theoretical topic, but we will understand what we need to understand. If there is something really that you need to understand, that only we will discuss, and the remaining part you can refer PS Bimra. In that you will be able to find very good explanation. Okay, or any other book of power electronics. Okay, so what are the general rating of any semiconductor device? Generally we will have to specify what is the voltage handling capacity of the device. So similarly, thyristor will also have some voltage rating, and also it will have some current rating.
Okay, and apart from the voltage and current rating, thyristor will also have dV by dt rating and di by dt rating. Okay, so the dV by dt rating and di by dt rating, you will have to understand why we need to specify the dV by dt and di by dt for a thyristor. Okay, so let's first of all begin with the voltage ratings or the anode voltage rating. Okay, so there is a method of defining the various voltages. For example, as it has already been written in the book also. Okay, so the 3 subscript, normally we are using 3 subscript notation. For example, one type of rating is VDWM. Okay, so what is VDWM? It is the peak working forward blocking voltage. Peak working forward blocking okay, so what is the 3 subscript notation here? The first subscript indicates the direction or the state, means for example this first subscript, if there is D, it means it is in forward blocking state. Okay, so D means forward blocking region with gate circuit open. Okay, so obviously if it is in forward blocking, the gate circuit should be open, or it can be on state. So instead of D there will be a T subscript. T means on. If it was like TWM, that would have mean that peak working on voltage. Okay, so means when the thyristor is in its on mode, when thyristor is turned on, then what is the voltage across it? That will be that voltage. Okay, so normally we specify the blocking voltages. Okay, reverse blocking voltages, because in forward direction always you will see that the voltage will be limited to 1 to 1.5 volt if the thyristor is turned on. Okay, so with the help of this diagram you can understand what we are talking about when we are talking about these ratings. So in an industrial area, when you are using thyristor, if suppose for a industry purpose, then there will be like voltages spikes will be there, or it can be there. So the voltage will not be perfect sinusoid, it will have some spikes. Okay, so this VDWM is the rating of the peak working forward blocking voltage. Okay, so the working voltage is the sinusoidal. So what is the peak of this sinusoidal? That is VDWM. Okay, and what is similarly to VDWM, there is VDRM. Okay, so VDRM. So again D means forward blocking mode, and now R means reverse. Okay, so this is R means repetitive, so it will mean that peak repetitive forward blocking voltage. So D means forward blocking,
M means maximum and R means repetitive. ठीक है. So what is the repetitive peak voltage that is coming in the supply? Okay, for example, this is a repetitive peak because it is occurring every cycle. Here also this occurred and here also this is occurring. So this is the VDRM rating of the thyristor. Okay, so so the rating means that if the value is above this, suppose the thyristor is exposed to a voltage during every cycle that is the more than the VDRM, that it may damage the thyristor. Okay, so VDRM normally is encountered when the thyristor is commutated or turned off. Okay, so another rating is VDSM. DSM. So again it means that peak surge forward blocking voltage. So again D means forward blocking, M means maximum, S means surge. Okay, so the surge means it is not repetitive in nature. It may come due to some external phenomena in the circuit, due to some lightning strike, or in the supply side there is something happened, suddenly some circuit breaker operated or something happened and there is a huge voltage spike in the supply, which will not repeat. Okay, normally this kind of events does not repeat. Okay, so this is basically the maximum voltage that the thyristor can withstand. Okay, and it will always be for very small duration. Okay, so it should be like for small duration, then only we are calling it as DSM or surge forward blocking voltage. Okay, so this kind of ratings we are defining for the thyristor, and you can see there are many other ratings also, like VRWM, that is peak working reverse voltage, VRRM, VRSM, VT is the on state voltage drop. Okay, so these are the normal voltage ratings that you can very easily understand using the book only. Now we will discuss what is the dV by dt rating. Okay, what is the need to specify the maximum dV by dt for thyristor? So let's see, forward so if you remember, we also discussed dV by dt turn on method for thyristor. Okay, so what we were saying that, for example, the thyristor is like this. There are junction J1, J2 and J3. This is the gate, anode, and this is terminal is cathode. So what we are saying that junction J1 and J3 are forward biased if there is a forward voltage appearing across the thyristor, and junction J2 is reverse biased. So a reverse bias junction behaves as a capacitor. Okay, so we define there is some junction capacitance for this junction J2. You can write it CJ2. Okay, so now if it is behaving as a capacitor, then we can write that there will be a current I that will be equal to C dV by dt. Okay, the voltage across the capacitor, whatever capacitor we are considering. So the capacitance we are considering is the charge separated due to depletion region at the junction J2. Okay, so what will happen if there is, normally what happens that junction J1 and J3 are forward biased, so maximum voltage that we apply across the thyristor will appear across the junction J2, and if that voltage, rate of change of that voltage is very high, then it will cause high amount of current flowing through that junction J2. Okay, and due to this current,
the junction J2 may lose its reverse blocking capacity and thyristor will start conducting. Okay, so we studied it as one method to turn on the thyristor. Okay, so similarly, suppose our thyristor is in forward blocking mode and suddenly the voltage dV by dt is too high, then it will result in false turning of thyristor, unwanted turning of thyristor. Okay, so thyristor will be turned on, but we didn't wanted it to be turned on. So that's why we will have to know what is the maximum dV by dt that we can allow for the thyristor. Okay, तो dV बाई dt रेटिंग का मतलब ये है कि बिना गेट पल्स के भी थायरिस्टर आपका टर्न ऑन हो सकता है अगर dV बाई dt बहुत ज़्यादा हुआ तो. ओके, तो इसलिए हमको dV बाई dt को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है थायरिस्टर के केस में. ओके, तो ये dV बाई dt रेटिंग का ये मतलब हुआ. अब इसके बाद और क्या क्या रेटिंग होगी, इसके अलावा रेटिंग करंट रेटिंग होगी. ठीक है, क्योंकि जो हीट डेवलप हो रही है बेसिकली वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगी हमेशा, कितना हीट डेवलप हो रही है. तो हीट या टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी के बेसिस पे थायरिस्टर की करंट रेटिंग्स डिफाइन होगी. ओके, सो द RMS करंट रेटिंग विल बी डिफाइंड बेस्ड ऑन द कितना हीट या कितना पावर लॉस वो थायरिस्टर कैपेबल है हैंडल करने का. और एवरेज करंट रेटिंग भी बेसिकली डिपेंडेंट होती है RMS करंट रेटिंग के ऊपर. ओके, सो नॉर्मली RMS करंट रेटिंग में अगर फॉर्म फैक्टर का हम डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज करंट रेटिंग मिल जाएगी. तो करंट रेटिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द थायरिस्टर. ओके, और थायरिस्टर की एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है, मतलब थर्मल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है थायरिस्टर की. सो इट्स ऑलवेज अ डिसएडवांटेज ऑफ थायरिस्टर. तो इसके लिए हमें हमेशा उसका ध्यान रखना पड़ता है. वहाँ पर हीट सिंक वगैरह डेवलप बना के रखते हैं हम लोग ताकि आसानी से उसका जो टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो हम बढ़ा सकें. ठीक है, तो नॉर्मली जैसे RMS या ऑन स्टेट करंट रेटिंग होगी, एवरेज ऑन स्टेट करंट रेटिंग होगी, सर्ज करंट रेटिंग हो जाएगी. जैसे सिमिलरली हमने सर्ज वोल्टेज रेटिंग देखा था. ठीक है, तो ये काफ़ी सिमिलर है. उसके अलावा भी एक ये है DI बाई dt रेटिंग. ओके, तो इसको हम थोड़ा देखते हैं. DI बाई dt रेटिंग क्या होगी. DI बाई dt रेटिंग ओके, तो जब हमने डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी थायरिस्टर की तो हमने देखा था कि थायरिस्टर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी. ये गेट टर्मिनल है, ये कैथोड है और ये एनोड है. ठीक है, तो अब जैसे गेट को हम कोई करंट हो या पल्स देंगे, गेट वोल्टेज देंगे, तो उसमें जो करंट फ्लो होना शुरू होता है गेट से और कैथोड की तरफ, वो किस तरीके से जाता था. हमने देखा था कि इसकी करंट की डेंसिटी किसी एक एरिया में ज़्यादा हो जाती है बाकी एरियाज़ के कंपैरिजन में. तो यहाँ से भी जो एनोड के तरफ जो करंट आ रहा है वो भी किसी एक एरिया के थ्रू ज़्यादा फ्लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया. तो ये हमने डायग्राम बना के दिखाया था कि डिले टाइम के दौरान जो है इस तरीके से कैथोड में करंट फ्लो होता है. कैथोड सरफेस में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में करंट ज़्यादा हो जाता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टर्न ऑन प्रोसेस शुरू होता है ये करंट स्प्रेड होना शुरू होता है और फिर लास्ट में पूरे कैथोड के सरफेस पे स्प्रेड कर जाता है. ठीक है, लेकिन ऐसा होने में टाइम लगता है यहाँ पर. ठीक है, TD ये जो था ड्यूरिंग डिले टाइम के दौरान ऐसा था. ये TR
राइज टाइम के दौरान था, ये टीपी स्प्रेड टाइम हमने बोला था इसमें, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो इस स्प्रेड कितना हो रहा है करंट का उससे ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोकल हॉटस्पॉट बनना शुरू हो जाएंगे उसमें, और उनकी वजह से जो थायरिस्टर कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो जो कैथोड सरफेस है वहाँ पर लोकल हॉटस्पॉट बन जाएंगे, क्योंकि करंट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, और ये जो एरिया जो है इसका स्प्रेड होने की जो स्पीड है उससे ज़्यादा तेज़ी से करंट स्प्रेड हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें di/dt का भी ध्यान रखना होगा थायरिस्टर के लिए। अगर di/dt ज़्यादा हो गया तो थायरिस्टर डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो वन रेटिंग, di/dt रेटिंग। इसके अलावा जो रेटिंग्स है दे आर लेचिंग एंड होल्डिंग करंट, जो कि हमने स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में देखा था। लेचिंग करंट क्या होता है? लेचिंग करंट इज द करंट एट विच थायरिस्टर टर्न्स ऑन, ठीक है, जब वो टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। ऑफ से ऑन स्टेट में जो जा रहा है वो लेचिंग करंट है, और होल्डिंग करंट क्या है? जब ऑन से ऑफ स्टेट में जो जा रहा है दैट इज होल्डिंग करंट, ठीक है। मतलब बिलो होल्डिंग करंट थायरिस्टर इज टर्न ऑफ, और जैसे ही लेचिंग करंट तक पहुंचा थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। ओके, सो दिस आर टू डिफरेंट करंट्स, वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो थायरिस्टर के लिए टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम भी हमको स्पेसिफाई करना होता है, कितना टाइम टर्न ऑन टर्न ऑफ होने में लग रहा है, उसी के बेसिस पे वो अपनी ब्लॉकिंग कैपेसिटी को रिगेन करता है, ठीक है। अगर थायरिस्टर को जो टर्न ऑफ होने में टाइम लग रहा है उससे पहले ही आपने फिर से उसको ट्रिगर करने की कोशिश कर दी, तो वो तो ऑलरेडी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जाने से पहले ही फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा। तो ये भी थायरिस्टर की इम्पोर्टेंट रेटिंग्स होती है जिसका हमको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा गेट सर्किट जो होता है उसका भी गेट सर्किट वोल्टेज की रेटिंग होती है, गेट करंट रेटिंग होती है, गेट का पावर रेटिंग होती है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो गेट सर्किट होगा वो हमेशा कम पावर रेटिंग का होता है आपका। ये जैसे गेट टर्मिनल जो है गेट सर्किट होगा कुछ इस तरीके से, ये जो गेट सर्किट है ये हमेशा कम पावर रेटिंग वाला होगा, तो इसका वोल्टेज रेटिंग VG, IG और पावर सब स्पेसिफाई होता है पहले से ही। जो इसकी डाटा शीट किसी डिवाइस की आप देखोगे तो उसमें ऑलरेडी दैट विल बी स्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये तो बात हुई रेटिंग्स की। अब आता है प्रोटेक्शन की, कि हम इसको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि थायरिस्टर्स जो हैं काफ़ी सारे मतलब एप्लीकेशंस ऐसे हैं जब आपके हाथ में, ऐसा नहीं आप 100% कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। मान लो किसी हेवी इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे सडनली कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से करंट सडनली di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एकदम से ज़्यादा हो जाए, या dV/dt एकदम से ज़्यादा हो जाए, तो हमको कुछ ऐसा इसमें एडिशनल प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा जिससे कि थायरिस्टर को डैमेज होने से बचाया जा सके। क्योंकि अब ये थायरिस्टर्स जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं ये सब, ठीक है। हाई वोल्टेज रेटिंग वाले स्पेशली जो थायरिस्टर्स होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ कभी भी वो डैमेज हो सकते हैं और उसकी वजह से ह्यूज इकोनॉमिक लॉस किसी भी इंडस्ट्री को बियर करना पड़ेगा। ओके, तो उसको अवॉइड करने के लिए वी प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन इन द थायरिस्टर, ठीक है। तो थायरिस्टर प्रोटेक्शन थायरिस्टर प्रोटेक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले है अपना di/dt प्रोटेक्शन। ओके, सो di/dt प्रोटेक्शन में जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी। तो di/dt को कैसे हम रोकें, ये इसमें
हम इसमें मतलब डिसाइड करेंगे di/dt की एक लिमिट जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे कि इतना di/dt होना चाहिए। और di/dt को कम करने का सबसे सही तरीका क्या है, di/dt के लिए एक इंडक्टर का यूज़ हम कर सकते हैं। सर्किट में अगर इंडक्टर होगा तो उससे हम di/dt को कंट्रोल कर सकते हैं। और टिपिकल di/dt लिमिट जो है थायरिस्टर्स की वो होती है 20 to 500 एम्पियर पर माइक्रोसेकेंड। ओके, ठीक है। तो एक स्मॉल इंडक्टर को हम थायरिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो उससे जो है di/dt जो है हमारा एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम लिमिट कर सकते हैं, जिससे कि लोकल हॉटस्पॉट जो होंगे वो नहीं बनेंगे और थायरिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो है dV/dt जो प्रोटेक्शन वो कैसे प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो dV/dt प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम थायरिस्टर के पैरेलल में रजिस्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि आपका dV/dt प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, इसी को हम नाम देते हैं स्नबर सर्किट। ठीक है, तो ये होता है आपका स्नबर सर्किट। जैसे मेटलैब पे अगर आपने सिमुलेशन किया होगा तो वहाँ पर आपको देखा होगा स्नबर रेजिस्टेंस, स्नबर कैपेसिटेंस, इन सब का वैल्यू वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, स्नबर स्नबर सर्किट। ओके, तो नॉर्मली क्या होगा स्नबर सर्किट में आपका, जैसे ये थायरिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है कि सीरीज़ में इंडक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कई बार, क्योंकि लोड में इतना ज़्यादा इंडक्टेंस होता है तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली di/dt प्रोटेक्शन वहाँ प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक LS भी हम लगा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये सब एलिमेंट्स स्नबर सर्किट में आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, नाउ di/dt को लिमिट करेगा ये इंडक्टर, dV/dt को लिमिट करेगा कैपेसिटर। तो ये RS का क्या काम है, ये हमको समझना है कि रेजिस्टेंस से क्या होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, आपका जैसे ही थायरिस्टर मान लो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है कुछ। ठीक है, थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, इसका मतलब थायरिस्टर को ओपन हम मान लेते हैं। नाउ ये कैपेसिटर चार्ज हो गया आपका। अभी एक टाइम के लिए अभी रेजिस्टेंस को हटा देते हैं ताकि हमको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस के नहीं होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड था सर्किट में, किसी वोल्टेज से ये चार्ज हो जाएगा। मान लो कि 5 वोल्ट से ये चार्ज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, थायरिस्टर को हमने ट्रिगर किया, टर्न ऑन किया थायरिस्टर को, थायरिस्टर विल बी टर्न ऑन। अब क्या होगा, थायरिस्टर टर्न ऑन हुआ, मान लो उसका रेजिस्टेंस हमने उसको शॉर्ट मान लिया, शॉर्ट सर्किट। तो क्या होगा कि सडनली बहुत ही हाई करंट फ्लो होने लगेगा। ये वाला जो लूप है आपका कैपेसिटर और थायरिस्टर से जो लूप बन रहा है, इस लूप में हाई करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, और सडनली हाई करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, एक तो इसका करंट रेटिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है di/dt रेटिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसको लिमिट करने के लिए आपको हमेशा यहाँ पर इसके साथ सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाना पड़ता है थायरिस्टर के साथ। ठीक है, जिससे कि जब वो टर्न ऑन होगा थायरिस्टर, ताकि तब उसके साथ सडनली करंट
फ्लो नहीं हो ज़्यादा, ठीक है। तो दैट करंट विल बी लिमिटेड बाय दिस रजिस्टर आर एस, ओके। तो दिस रजिस्टेंस इज नोन एज स्नबर रजिस्टेंस, इसको स्नबर कैपेसिटेंस बोलते हैं, और अगर इंडक्टर लगाए तो उसको स्नबर इंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो मेटलैब सिमुलेशन में आपसे ये सब वैल्यू पूछता है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी वहाँ पर कुछ वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ओके। तो ये वो आपका स्नबर सर्किट का। तो अब इसको किस तरीके से हम वैल्यूज़ जो हैं इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बाय एग्जाम्पल आपका 4.14 जो कि दिया हुआ है बुक में, उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ एक सर्किट दिया हुआ है आपको इस तरीके का, नाउ और यहाँ पर आर और सी एस, ओके। यहाँ पे कुछ वोल्टेज दिया हुआ है वी एस, ठीक है। तो सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 240 वोल्ट डीसी, और लिमिट दिया हुआ है डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी का लिमिट आपको दिया हुआ है 50 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड, और डी वी बाई डी टी जो दिया हुआ है दैट इज 300 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ओके। नाउ अब आपको निकालना है ये डी आई बाई डी टी इंडक्टर, मतलब कि ये वाला जो इंडक्टर है इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको हम एल एस ही नाम दे देते हैं, ओके। बाय द वे ये जो इंडक्टर यहाँ लगा होता है डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए, इसका नाम ही डी आई बाई डी टी इंडक्टर होता है। कई जगह इसको डायरेक्टली डी आई बाई डी टी इंडक्टर बोला जाता है, या फिर इसको एल एस भी बोला जाता है, स्नबर इंडक्टर भी बोलते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर नाम यूज़ होता है दैट इज़ डी आई बाई डी टी इंडक्टर, ओके। तो ये वैल्यूज आपको दिया हुआ है डी आई बाई डी टी का और डी वी बाई डी टी का। अब आपको ये सब डिज़ाइन करना है स्नबर सर्किट इस तरीके से कि ये लिमिट जो है इनसे ज़्यादा एक्सीड आपका ना हो, ओके। तो अब इस सर्किट को हम कैसे सोल्व करेंगे, नॉर्मल जो सर्किट एनालिसिस जो है हमने पढ़ा है उसी को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अज्यूम कर रहे हैं कि थायरिस्टर इज़ इन ब्लॉकिंग स्टेट, थायरिस्टर ब्लॉकिंग स्टेट में है, तो ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, दिस विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद इंडक्टर, और ये आर एस सी एस, ओके। So as soon as this switch will be turned on, जो इक्वेशन आएगी, करंट बेसिकली फ्लो होगा कुछ ये इस लूप में, तो इक्वेशन जो है वो होगी वी एस टी इक्वल टू आर एस प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस L di by dt, okay. So the current will flow following this equation. इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा I as a function of time will be equal to capital I multiplied by 1 minus e to the power t by tau, और tau is the time constant of the circuit, so tau will be L by total रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, और I विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, या फिर स्टडी स्टेट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो है, सो दैट विल बी वी एस डिवाइडेड बाय
ओके, तो यहाँ से ये आई टी का इक्वेशन आया है। अब इससे डी आई बाई डी टी हम निकाल सकते हैं, तो व्हाट विल बी डी आई बाई डी टी? डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू कैपिटल आई e to the power minus t by tau multiplied by 1 by tau. So this di by dt आ गया यहाँ से हमारा। तो इसमें यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे, तो फाइनली जो आएगा वो आएगा इक्वेशन vs by l e to the power minus t by tau. सो डी आई बाई डी टी विल बी मैक्सिमम वैल्यू इसका कब होगा? जब t इक्वल टू 0 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो डी आई बाई डी टी है, हमारे सर्किट का जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी है, दैट विल बी इक्वल टू वी एस बाई एल। ठीक है, तो यहाँ से आप L निकाल लोगे, L विल बी इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी मैक्स। ठीक है, मतलब कि Vs बाई एल का वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? L का दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ L। ठीक है, अगर L इससे ज़्यादा छोटा हुआ तो डी आई बाई डी टी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये L का मिनिमम वैल्यू यहाँ से मिलेगा कि मिनिमम इतना तो L होना ही चाहिए सर्किट में। सो L मिनिमम यहाँ से आएगा, तो VS में इसका डिवाइड कर देंगे तो L मिनिमम आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। यहाँ पे वैल्यू आप रखोगे तो ये 4.8 माइक्रो हेनरी आ जाएगा। ओके, सो अच्छा, यहाँ पर हमने सर्किट में क्या किया है कि वी आर अज्यूमिंग दैट वोल्टेज ड्रॉप, मतलब कैपेसिटर जो है उसके अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज ड्रॉप 0 था। तो उसी केस में यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा डी आई बाई डी टी का। ठीक है, तो हम पेसिमिस्टिक अप्रोच यहाँ पर लगा रहे हैं। इसका मतलब हम ऑलरेडी जो है उसके वोल्टेज ड्रॉप को 0 अज्यूम कर लिया है, तो ऑलरेडी जो डी आई बाई डी टी है वो ज़्यादा ही आएगा हमारा। तो इसलिए पेसिमिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए कैपेसिटर के वोल्टेज ड्रॉप को अभी हमने 0 अज्यूम किया है। नाउ वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो आर एस मल्टीप्लाइड बाई आई होगा, तो डी वी बाई डी टी जो होगा that will be equal to RS into di by dt। ओके, तो अब अगेन वो di by dt की जगह हम वो लिख सकते हैं। सो इसका मतलब dv by dt max is equal to vs divided by l। ठीक है, तो यहाँ से हमको RS का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो लिमिटिंग वैल्यूज़ यहाँ से मिलेगी आपको, और फिर जब सर्किट में आप डिज़ाइन करते हो तो एक्सपीरियंस से आपको या फिर ऑप्टिमम एनालिसिस से आपको वैल्यू मिलेगी, या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो वैल्यू सेलेक्ट की जाती है डिज़ाइन में। ठीक है, तो RS जो है विल बी इक्वल टू L by Vs multiplied by dV by dt मैक्सिमम। ठीक है, तो ये RS का आपको क्या मिलेगा? यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा RS का, कि RS का वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, दिस आर द लिमिटिंग वैल्यूज़।
तो इसी में इक्वेशन में आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको आएगा 6 ओम, आर एस विल बी इक्वल टू 6 ओम मिलेगा। ठीक है, अब एल और आर का वैल्यू मिल गया, अब सी का वैल्यू निकालना है। तो सर्किट का जब एनालिसिस करते हैं हम, तो जो ये सर्किट का रिस्पॉन्स है दैट शुड बी अंडर डैम्प्ड। ठीक है, तो ये किसी भी सर्किट का डिज़ाइन जब हम करते हैं, नॉर्मली हम अंडर डैम्प्ड केस के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं, ताकि जो सर्किट हो वो स्टेबल हो, आपका अनस्टेबल नहीं हो। ओके, तो उसके लिए जो कंडीशन होती है, उसी कंडीशन का यूज़ करते हुए हम सी का वैल्यू निकालेंगे। सो जो कंडीशन होती है दैट इज़ आर एस शुड बी इक्वल टू 2 जीटा स्क्वायर रूट एल बाय सी एस। ठीक है, ये जीटा इज़ द डैम्पिंग फैक्टर, जिसका वैल्यू मतलब 1 से कम होना चाहिए फॉर अंडर डैम्प्ड। तो 0.5 to 0 मतलब 1 तक इसका वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो 0.5 से 1 के बीच में मान लो इसका वैल्यू आपने ले लिया 0.65, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सी का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से ये हम यहाँ पर स्नबर सर्किट का डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एनालिसिस किया है स्नबर सर्किट का, किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं हम। सो दिस वाज अबाउट द प्रोटेक्शन। तो di/dt और dv/dt का प्रोटेक्शन आप बेसिकली यूजिंग स्नबर सर्किट से करते हो, तो इसीलिए स्नबर सर्किट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी थायरिस्टर में। ओके, सो दिस आर प्रैक्टिकल थिंग्स। ये जो चीज़ें हैं प्रोटेक्शन वगैरह, ये सब प्रैक्टिकली अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोई सर्किट डिज़ाइन कर पाओगे। ठीक है, तो इसके अलावा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी हम प्रोवाइड कराते हैं थायरिस्टर में। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से कई बार हम नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं सर्किट में, या फिर वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिससे कि जैसे जैसे करंट कम होता है वोल्टेज बढ़ता जाता है, या करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होने लगता है। तो उन डिवाइसेस से हम वोल्टेज को सप्रेस कर सकते हैं, थायरिस्टर के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ना आए। ठीक है, इसके अलावा जो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइन का है वो तो रहता ही है। ठीक है, तो उन सब के अलावा भी थायरिस्टर को अलग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, वही हम देख रहे हैं। लेकिन नॉर्मल एप्लीकेशंस में क्या होगा, आपको ज़्यादातर स्नबर सर्किट ही मिलेगा। ठीक है, dv/dt और di/dt प्रोटेक्शन मेनली थायरिस्टर सर्किट के साथ लगा होगा आपका, और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन या ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए अलग से डिवाइसेस पहले से लगी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्किट ब्रेकर आपका पहले से लगा होता है, कहीं ना कहीं सर्किट ब्रेकर ज़रूर लगा होगा जहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जैसे कि आप सर्किट डायग्राम बुक में भी देख सकते हैं, तो ओवर करंट प्रोटेक्शन आपको दिखेगा कि सर्किट ब्रेकर है वहाँ पर। ओके, इसके अलावा गेट सर्किट का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि गेट में हम जब वोल्टेज दें तभी वोल्टेज जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कहीं किसी सर्किट से वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से थायरिस्टर सडनली टर्न ऑन हो जाए, तो वो भी अवॉइड करने के लिए जेनर डायोड का उसमें उपयोग किया जाता है, ताकि वोल्टेज रेगुलेट किया जा सके। और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं हम गेट सर्किट में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये गेट सर्किट है, तो गेट सर्किट में भी हम डायरेक्ट ऐसा वोल्टेज से कनेक्ट नहीं करते हैं इसको, बल्कि
ये हम जेनर डायोड यहाँ कनेक्ट करते हैं और सीरीज रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करते हैं ताकि जितना करंट जा रहा है उससे ज़्यादा करंट उसमें ना जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये गेट प्रोटेक्शन हो गया। ओके, तो दिस वाज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर। ओके, तो सीरीज, अब जैसे थायरिस्टर्स हैं, थायरिस्टर का कुछ लिमिटेड रेटिंग होगा। ठीक है, इवन दो काफ़ी हाई रेटिंग वाले थायरिस्टर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन जैसे हाई वोल्टेज डीसी लिंक है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है। अब उस हाई वोल्टेज को के लिए आपको थायरिस्टर का यूज़ करना है, तो वहाँ ऑब्वियसली हमको स्ट्रिंग्स ऑफ थायरिस्टर्स या स्ट्रिंग्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि सीरीज़ और पैरेलल में काफ़ी सारे थायरिस्टर बैंक हम वहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से सीरीज़ पैरेलल ऑपरेशन की मदद से हम हमारा मॉड्यूल डेवलप करेंगे। पावर मॉड्यूल आप इससे डेवलप कर सकते हो और उसी से आप फर्दर सर्किट में इसको कनेक्ट करोगे। ओके, तो अब इन सब ऑपरेशंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है आपका कि जो सीरीज़ और पैरेलल में ऑपरेशन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो वोल्टेज डिवीज़न हो। ठीक है, जैसे यहाँ से कुछ वोल्टेज है V, तो यहाँ 4 थायरिस्टर है, तो हम चाहते हैं कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो सारे थायरिस्टर के अक्रॉस बराबर हो, V/4 से बराबर वोल्टेज ड्रॉप हो, ताकि किसी एक थायरिस्टर के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ना आए। ठीक है, सिमिलरली जो करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, जैसे ये I है, 3 ब्रांचेस हैं, तो हम चाहते हैं कि हर ब्रांच में बराबर करंट जाए। ठीक है, I/3 I/3 ठीक है, इस तरीके का ऑपरेशन होगा तो दैट विल बी सेटिस्फैक्ट्री। उससे किसी भी थायरिस्टर के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो किसी एक ही थायरिस्टर के अक्रॉस काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज आ गया, तो वो थायरिस्टर आपका डैमेज हो सकता है। या फिर किसी एक ब्रांच के अक्रॉस ज़्यादा करंट आ गया तो वो ब्रांच के थायरिस्टर आपके डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सो जब भी सीरीज पैरेलल ऑपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टर्म हम पढ़ते हैं दैट इज़ नोन एज स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगा, एक्चुअल रेटिंग ऑफ द होल स्ट्रिंग एक्चुअल रेटिंग अब वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकता है।
वोल्टेज या फिर करंट ऑफ होल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल रेटिंग multiplied by number of SCRs in the strings. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 SCR थे 100 वोल्ट के। ठीक है, अब हमने इन 4 SCRs को कनेक्ट किया है सीरीज में। Now these 4 SCRs are connected in series। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है, हम बोल रहे हैं इस स्ट्रिंग की रेटिंग है 380 वोल्ट जब इन चारों को एक साथ कनेक्ट किया तो। ठीक है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इस केस में कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वोल्टेज रेटिंग जो कि है 380 वोल्ट डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल रेटिंग ऑफ SCR, वो था 100 वोल्ट, मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, दैट इज़ द नंबर ऑफ थायरिस्टर कनेक्टेड इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा इसमें, 380 डिवाइडेड बाय 400। ओके, सो द स्ट्रिंग एफिशिएंसी विल बी 0.95। ओके, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। ठीक है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ओके, और परसेंटेज में एक्सप्रेस करना तो इसमें 0.95 या फिर 95% स्ट्रिंग एफिशिएंसी है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और एक और जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं डी रेटिंग फैक्टर। ठीक है, डी रेटिंग फैक्टर, तो डी रेटिंग फैक्टर होता है 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ पर डी रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.95 दैट इज इक्वल टू 0.05 और 5%। स्ट्रिंग एफिशिएंसी है 95%। ओके, तो अब डी रेटिंग फैक्टर से आपको क्या पता चलता है कि कितना आपने सेफ्टी मार्जिन वहाँ पर लिया है। ठीक है, सेफ्टी मार्जिन कितना है। तो डी रेटिंग फैक्टर को बढ़ाने के लिए कई बार क्या होता है कि आपको मान लो 380 वोल्ट चाहिए, तो नॉर्मली क्या है 100 वोल्ट के हम 4 थायरिस्टर हमने यूज़ किए, लेकिन अगर मैं जानबूझ के एक एक्स्ट्रा लगा देता हूँ कि चलो 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डी रेटिंग फैक्टर आपका इम्प्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, 380 वोल्ट के लिए अभी मैंने क्या किया, 100 × 5 SCRs वहाँ पर कनेक्ट कर दिए, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 0.76 और 76% हो गया आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी। सिमिलरली डी रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.76 दैट इज इक्वल टू 0.24 और 24%। ठीक है, तो डी रेटिंग फैक्टर पहले कितना था 5%, अब हो गया 24%। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हमने कर दिया डी रेटिंग फैक्टर को। तो इससे हमको पता चल गया हमारा सेफ्टी मार्जिन अच्छा हो गया है अब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। ओके, तो दिस इज़ अबाउट ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी और डी रेटिंग फैक्टर के बारे में ये हुआ।
ओके, नाउ अब देखते हैं हम सीरीज ऑपरेशन। ठीक है, सीरीज ऑपरेशन सीरीज में हमने दो थायरिस्टर्स को कनेक्ट कर रखा है। ये इस थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है, यहाँ पे ये वोल्टेज V2 है। थायरिस्टर T1 और T2 अज्यूम कर लेते हैं, ये T1 है, ये T2 है। ओके, तो अब क्या होगा, इनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा दोनों थायरिस्टर्स का, वो आल्दो सेम रेटिंग के थायरिस्टर आपने सेलेक्ट किया, आप मार्केट में जाके बोल रहे हो कि हाँ मुझे 100 वोल्ट के 4 थायरिस्टर दे दो या 100 वोल्ट के 5 थायरिस्टर दे दो, रेटिंग दोनों का सेम है, लेकिन दे आर नेवर गोइंग टू बी 100% आइडेंटिकल। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसमें डिफरेंस आएगा ही, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक भी 100% आइडेंटिकल नहीं होने वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाया था वो किस तरीके से बनाया था, सपोज थायरिस्टर T1 का हमने ये कैरेक्टरिस्टिक बनाया, अब थायरिस्टर T2 का कैरेक्टरिस्टिक स्लाइटली, रेटिंग दोनों का सेम रखेंगे हम, मतलब फॉरवर्ड VBO जो है दैट विल बी सेम, बट स्टिल हो सकता है कि उसका लीकेज करंट थोड़ा सा ज़्यादा हो थायरिस्टर T2 का। ठीक है, तो ये IA VA, ये T2 की बात कर रहे हैं हम, और ये T1 है आपका ब्लैक में थायरिस्टर T1 का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब सीरीज में दोनों कनेक्टेड हैं और अभी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। ठीक है, ओके, तो वहाँ पर अब रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में क्या होगा, थोड़ा बहुत कुछ लीकेज करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो सपोज अब सीरीज में है तो दोनों में सेम ही करंट फ्लो करेगा, मान लो लीकेज करंट का जो वैल्यू था दैट वाज इक्वल टू I0, ये करंट फ्लो कर रहा था I0 करंट। ओके, तो I0 करंट फ्लो कर रहा था, तो वोल्टेज अब दोनों के अक्रॉस कितना होगा, सो ये वोल्टेज है थायरिस्टर T2 के अक्रॉस और ये वोल्टेज है थायरिस्टर T1 के अक्रॉस, सो दिस इज V1 एंड दिस इज V2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सेम करंट के लिए दोनों का वोल्टेज अलग अलग है कैरेक्टरिस्टिक पे। ओके, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि V1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो इसका मतलब कि है कि थायरिस्टर T1 का लीकेज करंट कम था, इसलिए इसके क्रॉस अब वोल्टेज ज़्यादा आएगा सीरीज में जब वो कनेक्टेड होगा थायरिस्टर T2 के साथ। ओके, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि देखो कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो उससे वोल्टेज जितना दोनों के अक्रॉस अपीयर हो रहा है दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल नॉट बी आइडेंटिकल। ओके, तो इसी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है कि हमको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो क्या हो, जो वोल्टेज आ रहा है उनके अक्रॉस वो दैट शुड बी
इक्वल। ओके, अच्छा अभी स्ट्रिंग इफिशिएंसी अगर पूछें तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी अभी कैसे निकलेगा? टोटल स्ट्रिंग का जो वोल्टेज है, अभी कितना वोल्टेज है इस स्ट्रिंग के अक्रॉस? वोल्टेज इज V1 प्लस V2। इसमें अब हम किसका डिवाइड करेंगे? दो थाइरिस्टर है, 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे अभी? सो विल हैव टू मल्टीप्लाइड बाय V1, 2 इंटू V1, ठीक है, क्योंकि V1 इज द रेटेड वोल्टेज, मतलब ज़्यादा वाले वोल्टेज का डिवाइड करना है आपको बेसिकली। तो इसको 2 इंटू V1 करेंगे, सो द स्ट्रिंग एफिशिएंसी विल बी समवेयर लाइक, इस तरीके से स्ट्रिंग एफिशिएंसी आएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस V2 बाय V1। ओके, ओके, तो अब इस सर्किट को हम किस तरीके से इक्वलाइज करेंगे? तो उसको जो सर्किट को बोलते हैं, सर्किट का नाम है स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। ओके, तो स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट में हम क्या करेंगे? एक रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे हर थाइरिस्टर के साथ, ठीक है। नाउ सेम रजिस्टर हम यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहे हैं पैरेलल में। सबका वैल्यू R है। ओके, मान लो ये करंट है I1, यहाँ पर था करंट I, स्ट्रिंग का करंट था I। ओके, तो अगेन ये जो करंट है यहाँ पे भी I होगा करंट, इसका करंट मान लेते हैं कुछ I2 है। ओके, ये जो करंट है इसको हम नाम दे रहे हैं I B M N, ठीक है। और जो वोल्टेज है इस थाइरिस्टर के क्रॉस, that is VBM। तो इसका एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है कि सबसे पहले तो I1 माइनस, हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि इसका जो लीकेज करंट है, ये थाइरिस्टर आपका T1 है सपोज, तो T1 का लीकेज करंट है IBMN। सो फॉर T1 ये I1 जो है यहाँ पर, I1 विल बी इक्वल टू कैपिटल I माइनस IBMN, ये हो जाएगा। सिमिलरली रिमेनिंग जो थाइरिस्टर हैं, मान लो टोटल थाइरिस्टर N है इस स्ट्रिंग में, ठीक है,
तो रिमेनिंग जो n-1 थायरिस्टर है उसके अक्रॉस हमने लीकेज करंट को कुछ अज्यूम कर लिया है। वो लीकेज करंट हमने अज्यूम कर लिया है IBM(x), ठीक है। तो I2 का इक्वेशन लिखेंगे हम। सो I2 विल बी इक्वल टू I माइनस IBM(x). ओके, और I इज टोटल स्ट्रिंग करंट, ठीक है। नाउ जो वोल्टेज है VBM, अब वो वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा, I1 मल्टीप्लाइड बाई R के, और वोल्टेज अक्रॉस n-1 SCR, जो रिमेनिंग n-1 SCR हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाइड बाय I2 इंटू R, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, बाकी सब के अक्रॉस हमने अज्यूम कर लिया कि कुछ आइडेंटिकल लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस ओके। तो टोटल लूप के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज था Vs, सो द Vs विल बी इक्वल टू V1 प्लस रिमेनिंग वोल्टेज जितना भी था, तो V1 था I1 इंटू R प्लस रिमेनिंग वोल्टेज है n-1 मल्टीप्लाइड बाय I2 इंटू R, ठीक है। तो Vs को हम लिख देंगे Vs इक्वल टू VBM प्लस n-1 इंटू R मल्टीप्लाइड बाय I2 की जगह हम लिख रहे हैं I माइनस IBM(x), ओके। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा आपका VBM प्लस n-1 इंटू R मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल I को हम I1 और IBM(n) की टर्म में लिखेंगे, सो दैट विल बी बेसिकली I1 प्लस IBM(n) होगा, ठीक है, माइनस IBM(x), उसको लिख लेते हैं हम। माइनस IBM(x), ठीक है। Now Vs will be equal to VBM plus
n minus 1 into R multiplied by I1 minus IBMX माइनस IBMN, माइनस को इधर कॉमन निकाल लिया हमने यहाँ पे। ओके, so Vs will be equal to VBM plus n minus 1 R into I1 minus n minus 1 R into delta I. Okay, so this is the difference between the leakage current of transistor T1 and the leakage current of all other remaining transistor. तो इसको हमने delta I B का नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर R इंटू I1 क्या है, VBM है अगेन। सो Vs will be equal to, this is also VBM, so n इंटू VBM माइनस VBM, तो VBM से VBM कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा n इंटू VBM माइनस n माइनस 1 इंटू R इंटू डेल्टा IB। नाउ फाइनली R का वैल्यू हमको निकालना था जिससे कि सर्किट इक्वलाइज हो जाए। सो द R विल बी n इंटू VBM माइनस Vs डिवाइडेड बाय n माइनस 1 डेल्टा IB। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका इक्वलाइजिंग सर्किट हमने डिज़ाइन किया है। दिस इज़ नोन एज स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। ठीक है, मतलब कि ये जब जब थायरिस्टर ऑफ है या जब ऑन है उस कंडीशन के लिए है, केवल डायनेमिक कंडीशन के लिए नहीं है कि मतलब ऑफ से ऑन हो रहा है या ऑन से ऑफ हो रहा है, उस केस के लिए हमको अलग सर्किट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्टैटिक, जैसे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक हमने जो ड्रॉ की थी ना, उसी तरीके से ये स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट है। और इसमें हमने क्या अज्यूम किया है कि हमने अज्यूम किया था कि जो थायरिस्टर ये T1 था उसका लीकेज करंट वाज डिफरेंट देन ऑल अदर थायरिस्टर्स। तो उसके कंपैरिजन में हमने ये अज्यूम किया बाकी सबका लीकेज करंट इक्वल था। तो उस केस में हम किस तरीके से ये इक्वलाइजिंग सर्किट के लिए रजिस्टर का सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, सो दिस इज़ अबाउट द टुडेज लेक्चर। अब इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ SCR, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट lecture. Thank you for listening to the lecture.